Yeah, so good morning and welcome to another session. And today we are going to understand or learn a very important concept from Zen. So, has anybody heard of Zen or Zen, the Zen philosophy or the Zen thing? Yeah. So, what does the first thing comes to your mind when you hear this word Zen? Anyone? Relax. Okay, It's found Zen. with the state, very Uh, saintly. Priya, I need to repeat because voice was breaking. Sorry. Uh, Zen generally means very saintly. Very saintly. Okay. Zen means saintly. Anyway, so Pooja told relax. Okay. Calm. Okay. Anyone else? So Zen philosophy is similar to what yoga says. So the end goal is like stillness. If you ask about the Zen philosophy, it's about stillness. But they are like you would say very, very strict. Okay. So yoga is all about like when we go to the yoga institute, they actually are not very strict with us. You can do what you want, you can go at your own pace. But Zen masters, they are very strict. अगर नहीं करो तो सीधा डंडा पड़ता है सीधा या एक्चुअली डंडा पड़ता है द Zen because they are very particular about discipline. ओके सो अगर आपने काइजेन वर्ड सुना है किसी ने सुना है काइजेन दिस इज अगेन अ जापानीज फिलोसॉफी काइजेन okay that also means continuous improvement and small daily improvements over time leads to stunning results but they are very particular about discipline if this was a zen class it would start at dot 6:30.01 seconds मैं कैसे 2-3 मिनट वेट करता हूँ चलो आराम से all the morning yogis are coming and it's a task getting up at 6:30 and everything this was a zen class so zen is all about discipline first you need to understand Okay. So, अगर आपको बोलते हैं ना, if you want to achieve that state of mastery, one thing that I would encourage is bring discipline, more discipline into your life. So, if you commit somebody na, like me that the class will start at 6:30, you should log in by 6:29. Yeah, this is one simple example that I'm giving. Similarly, in other aspects of life also. एक बार आपने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने खुद के नहीं सुनता जैसे सलमान खान ने बोला था ना वांटेड में सो इफ यू कमिट समथिंग टू समवन अबाउट रीचिंग अबाउट अ मीटिंग अबाउट सम अपॉइंटमेंट्स अबाउट समथिंग दैट यू विल डू अ प्रॉमिस दैट यू मेक just make sure that you live up to it. Why? Because if you don't honor your Anju auntie, can you off the camera please? Because you are moving now. So it's a bit of distraction. Yeah, thank you. So if you do something, if you say something and you don't do, so it's like you're falling in your own eyes. कि हम खुद की बात अगर आप बोलते हैं ना कि आप छोटी छोटी कमिटमेंट्स अगर नहीं रख सकते फॉरगेट अबाउट डूइंग बिग थिंग्स इन लाइफ इफ यू कैनॉट जस्ट मेक सेंस या हम छोटी छोटी चीजें जो कमिट कर रहे हैं मैं थोड़ा हिंदी भी बोलूंगा बिकॉज आई एम गेटिंग अ फीडबैक कि आप हिंदी में बोला करो थोड़ा अगर हम छोटे छोटे कमिटमेंट्स अगर पूरा नहीं कर सकते हैं हमने एक अलार्म सेट किया कि हमें 6 बजे उठना है या हमें 7 बजे उठना है बट हम उसको स्नूज करके हम 8 बजे उठते हैं 9 बजे उठते हैं अगर आप जिस समय सोचते हो कि इस समय मैं उठना चाहता हूँ आप नहीं उठ पाओगे फॉरगेट अबाउट डूइंग बिग थिंग्स इन लाइफ इट्स लाइक यू आर सेइंग टू योरसेल्फ कि आई एम नॉट एबल टू कीप अ कमिटमेंट एंड हाउ कैन यू डू बिग थिंग्स इन लाइफ So big things in it, इसका मतलब नहीं है कि you become a Mukesh Ambani and what you become, but at the end of your life, you should feel कि हाँ, I've done something meaningful with my life. Because देखिए समय तो बीतते जा रहा है, time is flying. We all are into our adulthood, somebody are so most are into our 40s, 50s, 60s, and we think कि एक समय आएगा जब हम जीवन जिएंगे हमारा, right? कब है वो समय? हाँ, when will that time come in your life? कभी नहीं आने वाला है वो समय आज ही है अगर हमने आज में रहना सीख लिए आज अगर हमने बोलते ना यू बिकम दैट डिसिप्लिन्ड मास्टर ऑफ योर सेल्फ जेन इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन नथिंग एल्स कि कैसे आप अपना बोलते ना एक एक पल आप कॉन्शियसली कैसे जिए एक एक पल का पूरा इस्तेमाल अच्छे से कैसे करें विच इज टेकिंग यू टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस आपके जो जीवन का लक्ष्य है आपको उस तरफ कैसे ले जाए वो आज क्या करते हैं हाउ मोस्ट ऑफ अस आर स्पेंडिंग अवर टाइम वी आर आइदर कंप्लेनिंग रिग्रेटिंग ब्लेमिंग स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया हम सब वो कुछ कर रहे हैं जो हमें अपने बोलते हैं ना जीवन के लक्ष्य से दूर ले जाएगा अगर कोई लक्ष्य है भी आपके जीवन में तो सबसे बड़ा बोलते हैं ना सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं हमें पता ही नहीं कि हमें जीवन को किस दिशा में ले जाना है एक तरह से आप एक एरोप्लेन में बैठे हैं पर पायलट को पता नहीं है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है कि बॉम्बे से प्लेन टेक ऑफ तो कर गई है और उसको दिल्ली जाना है कि चेन्नई जाना है उसे पता ही नहीं है एक लक्ष्य ही नहीं मालूम है तो कहाँ जाएगा हमारा जीवन देन हम घूमते रहते हैं फिरते रहते हैं यही कारण है आज इतना डिप्रेशन इतना एंजाइटी इतना लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं इतनी सुख सुविधा होने के बाद आज क्या नहीं है एक मोबाइल फोन में बटन दबाओ हमें सब कुछ मिल सकता है तो हमारी लाइफ तो और सुखी होनी चाहिए बट हमारी लाइफ और दुखी क्यों होते जा रही है तो हमें नहीं पता कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है
तो जेन फिलोसॉफी में सबसे पहले बोलते हैं कि बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस ऑफ हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ, बी कॉन्शियस ऑफ हाउ यू आर स्पेंडिंग योर डेज। हम अपने दिन कैसे बिता रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता है। सुबह से रात हो गई, अरे यार हमें पता ही नहीं चला आज हमने क्या किया। किसी को अगर रिकॉल करने बोलो, जो हम रिफ्लेक्शन टेक्निक करते हैं, हम रिकॉल ही नहीं कर सकते हैं सुबह से शाम तक हमने क्या किया है आज का दिन। पास्ट तो आप भूल जाइए, उसे लर्निंग्स तो आप भूल जाइए, हमें पता ही नहीं है। तो Zen is all about being the best version of yourself. Kaizen is about small daily improvements. So ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा अपने आप पे आज प्रेशर लेना है और आज ही हम सब कुछ इंप्लीमेंट करें अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं होता है। इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं, बट यू शुड बी डिटरमाइंड। अगर आपके बोलते हैं ना डिटर्मिनेशन में कमी है, तो आप खाली पोस्टपोन करते रहोगे कि मेरा कल किसी से बात हो रहा था कि मैं नवंबर से बहुत अच्छा पढ़ाई करूंगी, अभी मुझे एक महीना खाली दे दो थोड़ा इसके लिए, मैं नवंबर से, बोलो दैट विल नेवर कम इन योर लाइफ। शी वॉज अ स्टूडेंट एंड शी केम टू मी अबाउट सम स्ट्रगल्स विद स्टडीज, कि ऐसा ऐसा है। बोला सर मैं पक्का नवंबर से मैं आई विल जस्ट स्टॉप माई इंस्टाग्राम, इट विल नेवर हैपन, आइदर इट इज टुडे और नेवर। ओके, सो यू डोंट वेट फॉर अ टाइम कि अब से मैं खाली दिवाली जाने दो ना, दिवाली में मैं इंडल्ज कर लेती हूँ, दिवाली के बाद मैं पक्का हेल्दी खाना खाऊंगी। आज चलो ठीक है ना यार, आज मैं सो लेती हूँ, कल मैं टाइम से उठूंगी, टुमारो विल नेवर। डिटर्मिनेशन में देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, that your determination to be the best version of yourself, because if you come to my class, be rest assured I want to be the best in the world. Whatever I do, in best in the world, and not in comparison to others, but I should be like, अंदर से लाइक आई शुड बी कंप्लीटली दिस, कि मैंने अपना 100% दिया दिन के अंत में, मैंने आज कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे कमिटमेंट। हो सकते हैं और लोग मुझसे बेहतर हों और लोग मुझसे बेटर बेटर करें, बट मुझे कंपैरिजन करना है अपने पास से। राइट, उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है पहले तो एक जीवन में आपको लक्ष्य, जैसे मैंने बोला आपकी जीवन में आपका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, किस दिशा में आपकी जीवन जा रही है। एंड देन कॉन्शियसली हमारे जो हैबिट्स हैं, जेन इज ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी। किसने बोला सिंप्लिसिटी? यस, इट इज अबाउट सिंप्लिसिटी। तो एक तो पहले जो भी अननेसेसरी चीजें हमारी लाइफ में, अगर आपको जेन फिलोसॉफी फॉलो करनी है, जो अननेसेसरी चीजें आपकी जिंदगी में, उसको आप एलिमिनेट करना शुरू करिए। दे जेन फिलोसॉफी बहुत बात करता है मिनिमलिज्म के बारे में। मिनिमलिज्म क्या होता है? ये नहीं कि हम सब कुछ घर बार सब कपड़े जेवर सब बेच दें and हम तो एकदम साधु का जीवन जिए, वो नहीं होता। मिनिमलिज्म मतलब ये होता है कि हम अपने जीवन में वही चीजें रखें जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है। सो थिंग्स दैट आर एडिंग टू वैल्यू टू मी, यू ओन दैट ओनली। सो फर्स्ट एस बोलूंगा, मैंने 3 एसेस बनाए, 3 एस। फर्स्ट एस, इफ यू वांट टू फॉलो दिस zen philosophy, is simplicity. डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। बोलते ना कि हम अननेसेसरली अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। बाय डिजायर ऑफ ओनिंग थिंग्स, आई ऑलरेडी हैव 20 सेट्स ऑफ क्लोथ्स बट आई वांट 10 मोर। जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग। ओके, you already have a good settled job but you to hustle, you want to do more with your life. So in the quest of more, कहीं ना कहीं we are losing our peace of mind, we are losing our balance. So first S is क्या? Simplicity. एक हम सिंपल जीवन जीना कैसे सीखे, विच इज इन लाइन विथ योर वैल्यूज। आपके वैल्यू सिस्टम्स के हिसाब से आप अपना अपना जो बोलते हैं ना जीवन शैली आप डिटरमाइन करिए। दिस इज सिंप्लिसिटी। सेकंड, जेन क्या बात करता है? स्लो डाउन के बारे में। जो काम किसी ने लिखा था चैट बॉक्स में कि काम स्लो डाउन, कहीं ना कहीं बोलते हैं हमने जीवन को एक रेस बना दिया। हर एक चीज में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, हमें लगता है कि लाइफ कहीं ना कहीं एक छूट रही है, हमारा जीवन कहीं ना कहीं छूट रहा है। एंड यू नीड टू कैच अप, अदरवाइज यू विल फॉल बिहाइंड। दिस इज अगेन बोलते हैं ना बिग मिथ दैट वी, आज अर्थ को लगेगा क्या मार्स मेरे से ज्यादा स्लो जा रहा है, या अर्थ को लगता है कि हाँ मर्क्यूरी मेरे से ज्यादा फास्ट जा रहा है। एवरीथिंग इन नेचर इज मूविंग एट इट्स ओन पेस, नेचर इज परफेक्ट, प्रकृति परफेक्ट है। सीजन आते सीजन जाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि यार आज मॉनसून ने बोला कि मैं तो यार बहुत पहले आ जाऊंगा, या विंटर ने बोला कि मैं आगे आ जाऊंगा। सी दिस देयर इज, बिलीव मी, देयर इज कंप्लीट परफेक्शन इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में एकदम परफेक्शन है। जो चीज बिलियंस ऑफ ईयर से चलती आ रही है वो कैसे इम्परफेक्ट हो सकती है, हमें समझना पड़ेगा ये। एंड हम भी उसी प्रकृति का हिस्सा हैं, तो क्यों हम समय से लड़ें? हमारी एक लड़ाई हो रही है समय के साथ में और किसी के साथ में नहीं हो रही है, कि हमें चाहिए कि चीजें हमारे हिसाब से चले।
हमें चाहिए कि मौसम हमारे हिसाब से हो, हमारा चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे हिसाब से हो, हमारा काम हमारे हिसाब से हो, मेरी सैलरी मेरे हिसाब से हो, जो मुझे मिल रहा है हम संतुष्ट नहीं है, बिकॉज हमें लग रहा है कि हमारे पड़ोसी को ज्यादा मिल रहा है, उसके पास बड़ी गाड़ी है। कहीं ना कहीं इस रेस में क्या हो रहा है, अगेन वी आर लूजिंग अवर पीस ऑफ माइंड। एंड जेन का भी अल्टीमेट गोल जो योगा में है, ध्यान ध्यान धारणा ध्यान समाधि, जेन ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट ओनली। तो फर्स्ट एस क्या था? फर्स्ट एस वाज अबाउट सिंप्लिसिटी, कि हमें अपनी जीवन शैली कैसे सिंपल बनानी है। दूसरा था स्लो डाउन। स्लो डाउन मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना काम धंधा बंद कर दिए, ड्यूटीज मत करिए, मनीष ने स्लो डाउन बोला तो आज से मैं सब काम धंधा छोड़ के एकदम शांति से खाली करूँ। डू योर ड्यूटी। हमें अपना जो भी हमारा कार्य है हमें वो करना है, बट बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना समय से लड़े, बिना किसी, बोलते हैं ना कि हम छूट रहे हैं। दिन के अंत में हमें ये लगना चाहिए कि भाई हमने तो हमारा रीजनेबल बेस्ट दे दिया, अब जो आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो आएगा हम उसमें संतुष्ट हैं। बिकॉज हमें मालूम है कि हम भी एक प्रकृति का हिस्सा है, सब कुछ परफेक्ट है हमारी लाइफ में। अगर ये आप सोच रखते हैं, बिलीव मी, थर्ड एस जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्लीप, वो आपको अच्छी आएगी। तो इट्स अबाउट सिंप्लिसिटी, इट्स अबाउट स्लोइंग डाउन, एंड थर्ड अबाउट स्लीप। सो वी नीड टू, लाइक बोलते हैं ना, स्लीप मतलब खाली सोना नहीं होता है, इट इंक्लूड्स रेस्ट ऑल्सो, उसमें रेस्ट भी आता है। एंड वी हैव फॉरगॉटन एज अ जनरेशन व्हाट रेस्ट इज। आज सपोज कोई हाउसवाइफ है, काम करती है, अपना 4-5 घंटा उसने घर का सब ड्यूटीज अच्छे से करी, अब रेस्ट का समय आ गया तो क्या निकलेगा? इंस्टाग्राम निकल जाएगा। अरे मुझे थोड़ा तो रेस्ट चाहिए, राइट? सो वी हैव फॉरगॉटन एज अ, बोलते हैं ना, जनरेशन व्हाट रेस्ट इज। वी नीड टू रीडिफाइन, we need to redefine our relationship with rest and sleep. दिस इज वन थिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड। हम स्लीप तो बेकार चीज है, स्लीप तो बोलते हैं ना कि समय की बर्बादी है। ओके, क्या क्या कहावत नहीं होती कि बहुत समय मिलेगा सोने का जब हम मर जाएंगे। बिलीव मी, अगर आप आज बराबर रेस्ट एंड स्लीप नहीं करते हैं ना, आप उस बहुत जल्दी आप उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत समय मिलेगा आपको मरने के बाद, बिकॉज एक्चुअली वी आर डिगिंग अवर ओन ग्रेव इफ यू डोंट नो हाउ टू रेस्ट एंड हाउ टू स्लीप। आज बोलते हैं द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन टूडेज डे एंड एज इज टू डू नथिंग। हम भूल गए हैं कि हमारे शरीर को, हमारे मन को कितना रेस्ट की जरूरत है। जब हम बोलते हैं ना, व्हेन यू आर डूइंग हसलिंग, जब बहुत हसल होता है, हमारा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, जब हम एक चीज से दूसरी चीजों पे जंप करते हैं कि चलो अभी ये एक्टिविटी करें, फिर दूसरा एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, आपके शरीर का एक, बोलते हैं, नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम रेड जोन बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से आप अपने सारे ऑर्गन्स को नष्ट कर रहे हैं एक तरह से। एंड हमारे ऑर्गन्स की एक लाइफ स्पैन होती है, हमारे ऑर्गन्स जिंदगी भर नहीं चलने वाले हैं। ओके, तो अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज रहेंगे तो आप बीमारी की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत समय होगा आपके पास, बोलते हैं ना कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक था, यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू टू स्लीप व्हेन यू डाई, बट इफ यू डोंट स्लीप टुडे यू आर मूविंग फास्टर टुवर्ड दैट। आप समझ जाइए ये। तो स्लीप मतलब खाली स्लीप नहीं, कॉन्शियस रेस्ट शुड बी देयर, कॉन्शियस पीरियड्स ऑफ रिलैक्सेशन। सो हेल्थ के अगर आप एक फॉर्मूला पूछे मुझे, तो इट इज द नंबर ऑफ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेज माइनस नंबर ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज। कि हमारे जीवन में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेज कितने होते हैं, हमारे जीवन में स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज कितने होते हैं। प्रॉब्लम क्या है? रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेज ऑलमोस्ट डाउन टू जीरो नाउ। हम जानते ही नहीं है कि हमें कॉन्शियसली रेस्ट की जरूरत है, वो तो समय की बर्बादी है। सबसे बड़ा चीज बर्बाद कर रहा है आज के टाइम में, एक मोबाइल फोन है हमारा। ये हमें भुला दिया है कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई अच्छी किताब पढ़ें या कोई आप अच्छा पॉडकास्ट भी सुने। दैट इज नॉट रेस्ट, दैट इज योर स्टडी। सो लेट्स रीडिफाइन व्हाट रेस्ट इज। रेस्ट मतलब आई नीड कॉन्शियस रेस्ट। रेस्ट डजंट मीन टू थिंक, टू रीड, टू इंट्रोस्पेक्ट, नो। यू नीड टू लर्न हाउ टू कम डाउन, दैट इज वेयर। एक जेन की फिलोसफी होती है, जा जेन, ZAZEN। दिस इज वेर इट कम्स इनटू पिक्चर, वेर इट सेज कि कॉन्शियसली एटलीस्ट दिन में 3 से 4 बार आप 5-5 मिनट निकालिए, जस्ट टू मेडिटेट, डू नथिंग। तो एक बहुत मैं स्टोरीज की कहानी सुनाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ये आपको पहली बार सुना रहा हूँ शायद। तो एक लकड़हारा था, उसको एक पेड़ काटना था। एंड वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पर उसकी जो छुरी थी ना, उसमें धार नहीं था। उसकी छुरी में धार नहीं था, बेचारा बहुत मेहनत करता है। सो काटने का, पर पेड़ कटता ही नहीं है। जब छुरी में धार नहीं तो पेड़ कहाँ से कटेगा? हम सब वो ही हैं। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं,
हम सब सुबह शाम खटते हैं, सब मेहनत करते हैं, पर हमें शाम को लगता है या महीने के बाद लगता है कि हमने जितना मेहनत करा हमें क्यों नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या था? आपकी छुरी में धार नहीं। तो ये जो रेस्ट पीरियड्स होते हैं, ये जो स्लाइटली बोलते हैं ना कि धनुष बाण कैसे होता है, उसको पहले पीछे खींचना पड़ता है हमें, तब वो आगे जाता है, सही ना? वैसे ही है। तो ये जो हम कार्य करते हैं कि हम अपने आप पे समय बिताएं, हम थोड़ा रिलैक्स करें, हम समय से सोएं, हम समय पे खाएं। बेसिक चीजें मैं आपको सिखाता हूँ जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाता है, अलग अलग तरीके से सिखा रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाते थे कि स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है। अर्ली टू बेड अर्ली अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और क्या सिखा रहा हूँ। और जैन बोलता है कि दिन में 2 से 3 बार आप कॉन्शियसली आप रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को अपने शरीर में लाएं। आपका हेल्थ भी इंप्रूव होगा। एंड एक तरह से समझ जाइए, यू आर शार्पनिंग योर सॉ। हम अपनी छुरी में है ना धार सुधार रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लाइक, वो लकड़हारा जब पेड़ काटने गया तो जो काम 6 घंटे में हुआ वही काम 1 घंटे में होगा। व्हाट इज बेटर, लाइक क्या आप पूरी जिंदगी स्लॉग करते रहे, मुश्किल करते रहे, और यू लाइक स्पेंड टाइम ऑन रिलैक्सेशन, ऑन रेस्ट, ऑन स्लीप, टू सिंप्लीफाई, टू स्लो डाउन। Believe me, slowing down will not take you away from your goals. In fact, it is just preparing you for the बोलते हैं ना that जंप अहेड इन लाइफ। वो एक तैयारी है आपकी कि कैसे आप अपने जीवन में पूरा खुल के आप उसको जी सकें। तो आज हम एक टेक्निक सीखेंगे, 5 मिनट की टेक्निक है ये। हम करेंगे साथ में, इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम जाजन बोलते हैं। तो मॉर्निंग जाजन हो सकता है, ऑफिस जाजन हो सकता है, बिफोर स्लीपिंग जाजन हो सकता है। आपके ऊपर है आपको कितनी बार करना है दिन में, पर मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट दिन में 4 बार आप करिए। एक बार सुबह, एक बार लंच के पहले, एक बार डिनर के पहले, एक बार सोने के पहले। आप 4 बार ये प्रैक्टिस करिए। 5 5 मिनट निकालिए। समय की बर्बादी नहीं है, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैं बोला ना, यू आर शार्पनिंग योर सॉ। आप ऐसा समझ जाइए। भागा भागी करेंगे, बहुत भागा भागी करेंगे, बिलीव मी, इट्स अ रेसिपी फॉर हार्ट अटैक। वाई आजकल 30 40 साल के एडल्ट्स को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रेस्ट एंड रिलैक्स। भूल गए हैं वो। सिंप्लिसिटी तो कोई नाम की चीज ही नहीं है। यू आर ऑलवेज स्पेंडिंग टू शो ऑफ कि हमारा सर्कल है यार, हमें अगर रोलेक्स नहीं पहना तो क्या होगा, हमने अगर मर्सिडीज नहीं हुई तो लोग क्या बोलेंगे। एंड यू आर ऑन ईएमआई फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड यू टेक दैट unnecessary pressure to like be someone whom you don't relate to। एंड स्लो डाउन तो यार, इट्स लाइक हमें तो सब कुछ करना है, एक दिन में हमें मुकेश अंबानी बनना है। हाँ, लेट्स ड्रॉप दीज फॉल्स बोलते हैं ना, जो हमें हिप्नोटाइज कर दिया गया है कि जीवन ऐसे नहीं जियोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। कोई पीछे नहीं रहता है, कोई भूखा नहीं मरता है। बोलते हैं देर इज एवरीथिंग इन नेचर फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रीड, एंड यू गेट एवरीथिंग। बोलते हैं देर इज अ परफेक्ट लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑल्सो, कि आप जो करोगे वो आप पाओगे, आपको मिलना ही है। तो डोंट लाइक स्ट्रगल, डोंट हसल, स्लीप ऑन टाइम। मालूम है आपको, कई लोग यहाँ पर है जिनको समाज सेवा करना है, रात को 2 बजे समाज सेवा करोगे, आपको सेवा की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में। इट्स नॉट लाइक रात को 2 बजे समाज सेवा करने का समय है। बोलता हूँ ना, 8 बजे के बाद दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, प्रिपेयर फॉर स्लीप, स्लीप ऑन टाइम, वेक अप ऑन टाइम। बिलीव मी, नेक्स्ट डे आपका जो एक्टिविटीज होगा, यू विल बी मच मोर क्लियरर इन योर approach. Okay, come. Let's settle on the mat or on the chair, wherever you can sit for 5 minutes without any disturbance. वहां पर आप बैठ जाइए। Come. Let's start this practice. Come. Be comfortable, आप कंफर्टेबल रहिए जैसे भी आपको बैठना हो, वज्रासन, सुखासन, चेयरासन, wherever you can sit। सो जाजन मेडिटेशन जो होता है उसका 3 हिस्सा होता है। फर्स्ट इज योर पोस्चर। ओके, तो हमारा पोस्चर ऐसा नहीं होना चाहिए हम कोई गार्डन में बैठे, जैसे कुछ लोग अभी भी बैठे हैं ऐसे ऐसे। नो, यू सिट, बैक शुड बी कंफर्टेबली इरेक्ट। हमारा स्पाइन एक लाइन में होना चाहिए। तो हमारा जो सर्वाइकल है, हमारा जो टेल बोन है, एक लाइन में नेचुरली होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक एकदम इरेक्ट कि आप जबरदस्ती बैठे हैं। कंफर्टेबली इरेक्ट। योर चिन शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड। सामने की तरफ देखिए, जैसे हम होराइजन की तरफ देखते हैं, एक तरह से सामने की तरफ देखिए आप। जी, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। तो ये हो गया हमारा पोस्चर। दूसरा हमें फोकस जो करना है हमारे श्वास पे करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जाzen मेडिटेशन, वेर यू काउंट द नंबर ऑफ ब्रेथ्स दैट यू टेक इन अ मिनट। तो टुडे मैं आपके लिए काउंटिंग करूंगा, यू डोंट हैव टू मेजर योर टाइम, दैट आई विल डू फॉर यू। बस जस्ट नोटिस हाउ मेनी टाइम्स यू आर ब्रीदिंग। ब्रेथ मतलब इनहेल और एक्सेल, एक ब्रेथ हुआ। सपोज आप इनहेल किए और एक्सेल किए, आफ्टर एक्सेलेशन काउंट 1। ओके, तो लेट्स सी किसका 1 मिनट में कितना होता है। आई विल जस्ट टाइम इट फॉर यू। लेट मी चेक इफ आई हैव अ टाइमर। आई डोंट हैव अ टाइमर बट आई विल ट्राई। Come. Let's close our eyes. Keep your posture comfortably erect. Palms आप कैसे भी रख सकते हैं, whether palms facing up, palms facing down. You can take a mudra of your choice.
We'll practice Zazen for the next 1 minute and then see what happens. Come, let's start. Inhale. Exhale one. This way you have to do on your own at your own pace. Very slowly open your eyes. So we did for about 1 minute 10 seconds. Anybody wants to share कितने breaths हुए आपके? Anybody? How many breaths you did? There's no wrong, right? Okay, so don't feel that you will be judged. 20. 20. 20. 10. Okay. 10. 10. Okay. 15. Okay. 15. Anybody else? 5. Muktadi 5. saying 5. Muktadi and Ekta saying 4, 5. Okay. Dimple. Maximum because Sorry. 4, 4. 4. Okay. 10. Mm-hmm. 10. Okay. So basically 5 to 20 का रेंज एक आया. राइट. सो डरने वाली बात नहीं है. अगर आपका अबाउ 10 आया, अबाउ 15, 20 आया, मतलब यू आर ब्रीदिंग वेरी फास्ट. एक्चुअली यू आर ब्रीदिंग वेरी फास्ट. एंड आप बोलते हैं ना कि लुक एट द एनिमल किंगडम. तो जो प्राणी ज्यादा फास्ट श्वास लेते हैं वो कम जीते हैं, जैसे डॉग्स. ओके. ऐसे होते हैं, डॉग्स की लाइफ स्पैन कम होती है. एंड टॉर्टोइस कैसे होता है? वेरी रिलैक्स. बोलते हैं ना कि आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग कि हम एक सर्टेन नंबर ऑफ श्वास के साथ पैदा हुए. राइट. तो यू आर फिक्स, नंबर ऑफ ब्रेथ्स इज फिक्स्ड कि आप कितना श्वास लेंगे. सो दिस इज अ कॉन्शियस प्रैक्टिस टू स्लो डाउन योर ब्रीदिंग. जाजेन जो होता है, यू कॉन्शियसली स्लो डाउन. आप नोटिस करेंगे आपके विचार भी काफी कम आए होंगे जब आप फोकस करते हैं. व्हेन यू काउंट योर I ब्रेथ्स. wanted to ask the same thing. As you're saying, Zen means just to be at peace. But thoughts तो आते हैं. क्या? वो तो माइंड का काम है सोचना, वो तो सोचेगा ही. माइंड विल थिंक. सो डोंट जज योरसेल्फ. सी, अगेन मेडिटेशन का एक बहुत गलत हम जो सोचते हैं मेडिटेशन के बारे में कि हमें विचार नहीं आने चाहिए. माइंड की ड्यूटी, माइंड का जॉब है टू थिंक. इट विल थिंक. सो थॉट्स जब अराइज होते हैं ना, क्या करना है ये, यू डोंट गेट अटैच टू एनी थॉट. अब सपोज मैं ये कर रहा हूँ, मुझे थॉट आ रहा है, अरे मुझे आज काम पे जाना है, मुझे आज ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. जस्ट डिटैच फ्रॉम इट. इट विल गो अवे. आप नोटिस करिए, अभी तो मैंने 1 मिनट कराया, एक्चुअली आपको करना है एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स. आप जब अकेले करेंगे एक टाइमर लगा लीजिए आप, एंड 5 मिनट के लिए करिए. बहुत विचार आएंगे, आई कैन गारंटी दैट. अगर आप पहली बार कर रहे हैं या बिगिनर टू मेडिटेशन, विचार आने दीजिए. जज मत करिए अपने आप को कि मुझे विचार क्यों आ रहा है, एंड आई एम नॉट गुड, एंड मुझसे नहीं हो रहा है, एंड आज से मैं नहीं करूंगी. अरे है ही नहीं, कौन बोल रहा है आपको? मैंने कभी बोला आपको विचार नहीं आना चाहिए? इंस्ट्रक्शन में था वो. विचार आएंगे. जैसे बादल जैसे आते हैं जाते हैं, उस तरह से आपके विचार हैं वो जाते रहेंगे. हम उसको अगर ताकत देंगे तो वो होल्ड कर रहे हैं. आप देखिए, कोई भी नेगेटिव थॉट आता है ना, आप उसको ज्यादा तूल मत दीजिए, ज्यादा सोचिए मत. अपने आप थोड़ी देर बाद उसका पकड़ आपके ऊपर ढीला पड़ जाएगा. वैसे ही मेडिटेशन के दौरान अगर आपको कोई भी विचार आए, आप उसको तूल मत दीजिए, आप ज्यादा सोचिए मत इसके बारे में. आप नोटिस करेंगे कुछ सेकंड बाद वो चला गया. Okay, so this is that, see, we learn with practice also. So Zen is all about practice. प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है. इसके लिए मैंने बोला एज अ प्रिस्क्रिप्शन दिन में 3 से 4 बार आप चालू करिए इसको. 5 मिनट नहीं होता है शुरू में, 2 मिनट से शुरुआत करिए आप. आप खाली अपने ब्रेथ्स को काउंट करिए. आप नोटिस करेंगे कुछ दिनों बाद नंबर ऑफ ब्रेथ्स धीरे धीरे कम होते जा रही है. एंड बिलीव मी, अगर सोने के पहले आप ये करते हैं
और खाने के पहले आप करते हैं, your digestion will improve एक तो, because your parasympathetic is activated. Now we know the science behind it, कि ये जरूरी है। एंड सोने के पहले करेंगे, इट विल बी अ वेरी डीप स्लीप। 5 मिनट करिए, इतना गहरा नींद आपका होगा ना, मैंने ट्राई किया खुद, आई फेल्ट asleep, मुझे पता ही नहीं चला नींद कब आई, ऐसा हो जाता है। तो करिए, आप प्रैक्टिस करिए ये। बोलते हैं ना, रसगुल्ले का स्वाद कब मिल सकता है, जब हम उसको खाएंगे। ओके, सो व्हेन यू प्रैक्टिस दिस, दैट इज व्हेन यू विल कम टू नो द बेनिफिट ऑफ दीज प्रैक्टिसेस। दीज आर लाइक टाइम टेस्टेड प्रैक्टिसेस, जो हजारों सालों से चलते आ रही है, कोई नई चीज नहीं है। जेन, योगा, ध्यान, मेडिटेशन, सालों, बट हमें धीरे धीरे इनिशिएट करना है, बिकॉज हमारा माइंड इतना फास्ट दौड़ रहा है ना। इनिशियली तो इट विल बी लाइक टर्बुलेंट सरफेस ऑफ द ओशन, पर जब आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इट्स लाइक अ फ्लाइट विच इज लैंडिंग। जब एक फ्लाइट लैंड करती है, आप नोटिस करते हैं बहुत बार टर्बुलेंस होता है ऐसा, कि व्हेन इट इज अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर तो एकदम स्मूथ जा रहा है, बट व्हेन इट्स टाइम टू लैंड, व्हेन इट क्रैशेस विद द क्लाउड्स, धड़ 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 धड़, कुछ 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 होता है, फिर एक लेवल आता है। वैसे ही हमारे थॉट से हमने इसको यूज टू कर दिया टर्बुलेंस, धड़ 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 धड़। अभी उसको एक काम स्टेट में लाना है, तो एक दिन में तो आएगा नहीं, एक पल में तो आएगा नहीं। थोड़ा हमें पेशेंस रखना है, बट कंसिस्टेंसी बहुत important। Okay, so let's practice this for the next few weeks, and then see for yourself whether you are feeling good, whether your symptoms, जो आपका stress है, आपका जो भी है issues में भी are facing with digestion और high blood pressure, high BP वालों के लिए बहुत अच्छा है ये आपको लगता है बहुत हासिल कर रहे हैं आप। बट एक चीज जरूर इम्प्लीमेंट करिए, 8 बजे के बाद अपने एक्टिविटीज आप कम कर दीजिए, चाहे वो जूम मीटिंग्स हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो। क्या फायदा इतना मेहनत करके, इतना पैसा कमा के, या इतना कुछ करके, अगर आप जीवन, स्वस्थ जीवन नहीं जी सके, अगर आप जितना एटलीस्ट आपका लाइफ स्पैन है, एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन है, अगर हम उतना भी नहीं जी सके, व्हाट्स द पर्पस? कम, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस, वी कैन गो ऑन एंड ऑन। Exercises are also important.